Hello everyone. Today we are going to start our next chapter, your chapter number 5, the final word of class 7th. Students, the final word, this chapter, it is a story of a little boy and his mother. Okay, this story, this poem tells us the love between a mother and his boy. Actually, we all are attached with our mothers. Okay, with fathers we are also attached, but we have more affection with our mother because we feel safe in our mother's hand, in our mother's lap. Okay, we know this thing that a child always feels safe in the lap of his mother. Okay, this chapter, this is a story about a little boy and his mother. Now, in this chapter, the little boy had a very bad day at school. Okay, now let us read what is in this chapter. The final word. Actually, the final word refers to the final words of the mother. The chapter has the title, the final word. Okay, and the final word are the words of his mother. Final words of his mother that are very comforting to a child. So the title is the final word. Let us read the poem. Flowing like water and crashing against the shores of his mind, they hit him again and again. The memories. Okay, let us see the picture now. This is a story of this little boy. Okay, now look at this boy, how his face is. He is looking so sad, and all his friends, all his classmates are laughing at him. This is the story of this boy. अब देखो इस boy के ऊपर क्या है? ये boys, they are laughing, how they are mocking on him, upon him. Wait a minute. Okay. Now, the story of this boy, how they are mocking, how his classmates are mocking upon him. Girls and boys both are mocking upon him. And now see how he is sad, how he is sitting near the seashore and how he is feeling sad. So, let us read. Flowing like water and crashing against the shores of his mind, they hit him again and again. What hit him again and again? The invisible hands. Okay, the invisible hands. किसके invisible hands? जो boys और girls जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो उसको लगता था कि वो मुझे बार बार जो है वो they are hitting me. अब invisible hand actually वो उसको hit नहीं कर रहे थे, but उसको he thinks that those invisible hands are hitting him again and again. Those memories thrashed him like invisible hands, but boys were not supposed to cry. So he drank in the fear that coursed his cheeks and buried his face in his hands. और वो जो memories थी, because the boy had a very bad day at school, he was, आगे we will read this thing, तब वो क्या बोल रहा है, अब starting में क्या है कि उसके mind में जो वो memories हैं वो बार बार उसको वो जो memories हैं वो उसको टकरा रही हैं, they are hitting him again and again. Now अब उसके बहुत ज़्यादा उसको बहुत रोना आ रहा है, बट वी नो दिस थिंग दैट बॉयज़ आर नॉट सपोज टू क्राई. हम बोलते हैं लड़के रोते ही नहीं हैं और गर्ल्स तो रोती हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, तो उसको यही लगता है कि बॉयज़ वर नॉट सपोज टू क्राई. तो अब वो रो भी नहीं सकता, तो वो अपने फेस को जो था वो ही बरिड हिज फेस अंडर हिज पाम्स, अपने पाम्स में उसको फेस को ऐसे दबा लेता है बिकॉज ही इज़ वेरी सैड. ठीक है, एंड बरिड हिज फेस इन हिज हैंड, अपने हैंड्स पर अपने फेस को बरी कर लेता है. He remembered her face everywhere, serene, divine in its simplicity. Serene means calm, divine related with God. Telling him everything was all right, no one could hurt him now. अब क्या करता है, उसको अपनी मदर का फेस ही रिमेंबर हिज मदर फेस, उसको अपनी मदर का फेस याद आ जाता है. हर जगह उसको अपने मदर का फेस दिखता है जो बहुत सीरीन है, बहुत काम है, बहुत सिंपल है, डिवाइन है. और उसको लगता है कि उसकी मदर बोल रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड नो वन कैन हर्ट यू नाउ. टेलिंग हिम एवरीथिंग वाज ऑलराइट, नो वन कुड हर्ट हिम नाउ. अब वो क्या सोचता है कि अब उसको अपनी मदर का फेस, ओके, लुक एट दिस पिक्चर. नाउ व्हाट ही थिंक्स, अब उसको बहुत ज़्यादा दुखी, यू नो, ही वाज मॉक्ड अपॉन. एक्चुअली जो बुलिंग
हैं दैट इज स्टॉप, ये सबका बुलिंग और रैगिंग जो है वो स्टॉप है। लेकिन इस पोएम में यही बताया गया है कि ही वॉज बुलिड एट द स्कूल, ओके, उसको बुली किया गया था स्कूल में। तो अब वो बहुत ज़्यादा दुखी है, इज़ वेरी सैड। तो उसको सोचता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो उसको अपनी मदर का फेस याद आ जाता है, और मदर कैसी है, शी वॉज़ वेरी सिंपल डिवाइन। तो उसको लगता है कि मेरी मदर बोल रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके, तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। Now, she was always there behind him, mother, protector, savior. Savior जो सेव करता है, that is called savior. अब she was always there behind, उसकी मदर जो थी हमेशा, वी नो दैट मदर्स आर ऑलवेज बिहाइंड अस, ओके। तो उसको लगता है कि मेरी मदर जो है हमेशा मेरे साथ है, और मदर कैसी, प्रोटेक्टर है, सेवियर है। देन ही थॉट ऑफ द शेम हाउ द अदर्स हैड लाफ्ड एट हिम, तभी उसको वो शर्म याद आ जाती है कि कैसे उसके ऊपर सभी जो फ्रेंड्स थे दे मॉक्ड अपॉन हिम, और कैसे उसके ऊपर दे वर लाफिंग। Called him a fool because he did not know the answer. How could they expect him to know everything he could not comprehend? Why must he know after all? अब क्या था, उसको मदर का याद आ जाता है, लेकिन तभी उसको याद आ जाता है कि हाउ ही वॉज बुलिड इन द स्कूल, हाउ ही वॉज लाफ्ड, कैसे उसके ऊपर लाफ्ड अपॉन, उसके ऊपर हंसे थे। तो ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, comprehend मीन्स अंडरस्टैंड, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वाई शुड आई नो एवरीथिंग, ओके, कैसे, क्यों मैं हर एक चीज़ को जानूँ। बिकॉज होता है कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता। मोस्टली आपके साथ भी ऐसा होता है कि व्हेन टीचर आस्क यू क्वेश्चन एंड यू may not be able to give the answer, that if other students start laughing at you then you feel embarrassed. तो सभी embarrassed feel करते हैं, सभी तो we can't say, but some students who are very sensitive they feel embarrassed. तो वैसे इस लड़के के साथ है। अब लड़का जो है वो he was not able to understand कि why, क्यों वो हर एक चीज़ को जाने, why he must know all everything. ऐसा भी हो सकता है वो किसी क्वेश्चन का आंसर ना जाने। Now that mocked, okay, he could not comprehend, why must he know after all. Desperation, he wished could destroy every one of them that mocked him. अब नेचुरली होता है जब हमारा मूड खराब होता है, हम क्या सोचते हैं कि जिसने हमारे साथ ऐसा गलत किया हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो वैसे ये लड़का सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत निराश है, और व्हाट ही थिंक्स, ही वांटेड ऑल दैट स्टूडेंट्स, ऑल दैट पीपल, उन सभी को ही शुड, व्हाट ही थिंक्स कि मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूँ, ओके, दैट मॉक्ड, जो उसके ऊपर हंसे थे। crushed his self respect and wounded his pride. अब वो बोलता है कि वो सोचता है कि मैं उन सबको क्या करूं, कि मैं उनको डिस्ट्रॉय कर दूं, बर्बाद कर दूं, जो उसके ऊपर जो लाफ किए थे उसके ऊपर, और जिन्होंने उसके प्राइड को वूंड किया था, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था। His world crumpled around him. He thought he was going to die. ओके, तो उसको क्या लगा कि जो पूरा वर्ल्ड है वो उसके साथ में क्रम्पल्ड हो गया, मीन्स सिकुड़ गया, और उसको बट ही फील्स दैट ही वाज गोइंग टू डाई, उसको लगता है कि जैसे वो मरने जा रहा है, ओके। नाउ एंड देन ही थॉट ऑफ हर वेटिंग फॉर हिम विद ओपन आर्म्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग स्माइल, ओके, लुक एट दिस पिक्चर। अब इसमें ये मदर देखो, अब उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि मेरा वर्ल्ड जो है वो क्रम्पल हो गया, सिकुड़ गया, उसको लग रहा है कि वो ही वाज गोइंग टू डाई, वो ऐसे लगता है उसको कि बिकॉज ही इज सो मच यू कैन से एम्बैरेस्ड। तो उसमें फिर उसको याद आती है अपनी मदर की, ओके। अब एंड देन ही थॉट ऑफ हर वेटिंग फॉर हिम विद ओपन आर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग स्माइल। अब उसको मदर की याद आती है, वो सोचती है कि मेरी मदर खड़ी होगी ओपन आर्म्स के साथ और एक अंडरस्टैंडिंग स्माइल के साथ। ही फेल्ट स्लाइटली रीअश्योर्ड एंड हेडेड फॉर होम। अब उसको थोड़ा भरोसा होता है, एंड देन ही हेडेड टुवर्ड्स द होम, घर की तरफ चल पड़ता है। Still hesitant, still upset, still dying, the little boy had had a bad day at school. These are the concluding lines of this poem. Still hesitant, अभी भी थोड़ा वो hesitant है, थोड़ा upset है, थोड़ा उसको लग रहा है he is still dying। और उसको क्या है कि जो little boy का था, today little boy had a very bad day at school. So student, this is a story of a little boy and his mother. Little boy, or the final word, the title of this poem, the final word, these words, the final words are the words of his mother. जो final words के हैं उसकी mother के हैं, और वो words क्या हैं कि no one could hurt him now, no one can, कुछ नहीं कर सकता, now he is very safe with his mother, अपनी mother की arms में, lap में, now he is very safe. So this chapter, the final word. Okay, thank you students.